چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں اسفندیار ولی سے ملاقات، مولانا فضل الرحمان کی آزادی مارچ سے متعلق مشاورت، اپوزیشن کے مشترکہ لاہ عمل پر غور۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں اپوزیشن متحد ہے اور متحد رہے گی، اے پی سی کی تجویز دی ہے۔ میاں افتخار نے اپوزیشن کے درمیان رابطوں کو تیز کرنے کا مشورہ دے دیا کہ اپوزیشن متحد ہے، متحد رہے گی اور متحد رہنا ہوگا اپوزیشن کو۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی اس حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے مدرسوں کے بچوں کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کے سیاسی قسم کے ہتھ کنڈوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا جو سارا پروپیگنڈا تھا وہ کس طرح ایکسپوز ہو گیا۔ اقتدار سنبھالا تو ملک سنبھالنے کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑے، جس کے ثمرات نظر آنے لگے ہیں۔ حکومتی وزراء کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا مدرسے کے بچوں کو سیاسی ہتھ کنڈوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دور حکومت میں معیشت میں بہتری آئے گی۔ آرمی چیف اور تاجروں کی بہترین میٹنگ ہوئی، یہ بھی کہا 1 سال میں 10 ارب ڈالر کا قرض واپس کیا، راشن کارڈ بھی شروع کیا جائے گا۔ کاروباری شخصیت کو فون نہیں نوٹس بھیجا جائے گا، تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کیس رجسٹر نہیں ہوگا۔ چیئرمین نیب کا اعلان، تاجروں کے تحفظات بے بنیاد قرار دے دیے، کہا کبھی سعودی طرز کے اختیارات نہیں مانگے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی پر نیب کا گھیرا، محمد بخش مہر کے خلاف تحقیقات کا آغاز، اراضی کی تفصیل کے لیے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھ دیا، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ سی پیک کے منصوبے تاخیر کا شکار نہیں ہوئے، گوادر میں 300 میگا واٹ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ خسرو بختیار کی پریس کانفرنس، کہا سستی بجلی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ سفر کے مہینے میں رویت ہلال کمیٹی نے اس کیلنڈر کو برعکس 1 دن آگے سفر کی تاریخ دی۔ اب ہم نے وہ تصویریں ریلیز کی ہیں جس میں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ گوادر اور پسنی کے اوپر چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے غلط کیا، اس پہ پھر معافی مانگنی چاہیے اور رویت ہلال کمیٹی کو۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے رویت ہلال کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، ماہ سفر کی غلط اطلاع پر کمیٹی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کمیٹی میں 80 سال کے بابے نہیں نوجوان ہونے چاہیے، دوربین سے چاند دیکھنا غلط ہے تو پھر اینک لگا کر دیکھنا بھی غلط ہے، بعض لوگ بے شعور ہیں، ان سے بات نہیں کی جا سکتی۔ دو امریکی سینیٹرز اور سفیر کا آزاد کشمیر کا دورہ، پاک فوج کی کنٹرول لائن کی صورتحال پر بریفنگ، امریکی حکام کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشمیریوں کو فیصلے کا اختیار دیا جائے، وادی کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی یقین دہانی، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملاقاتیں۔ ابھی 2 مہینہ 3 مہینہ انجیکشن لگا رہے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ابھی ہمارا گردہ ہی ہے، اللہ ہے ہمارا گردہ نہیں، گردہ کی قیمت دیں۔ پنجگور کے مسیحاؤں نے زندگی درگور کر دی، 15 سالہ طالبہ کو اپینڈکس کا درد تھا، آپریشن میں گردہ نکال لیا گیا، ندا بی بی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، والد کی انصاف کی دعائی۔ میرا بیٹی تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ میرے کو پوچھا بھی نہیں ہے، میرے کو بتایا بھی نہیں ہے، سمجھے، میرے باوجود میرے بیٹی کو زندہ لاش بنایا ہے۔ جلال پور پیروالا میں لودھرا روڈ خستہ حالی کا شکار، عوام خصوصاً اسکول جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا، پتوکی کا مصروف ترین پھول نگر بلوکی روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کئی سال بعد بھی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ کراچی کے علاقے ملیر میں بارش اور گٹر کا پانی وبال جان بن گیا، سڑکوں اور گلی محلوں کا برا حال، فٹ بال گراؤنڈز بھی کئی روز سے پانی جمع، علاقے میں تعفن، بیماریاں پھیلنے لگی۔ السلام علیکم، آج 6 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیخ اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے مضبوط ہوتے مورچے سے بلاول بھٹو آج اسلام آباد کے مردان ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ اور دھرنے سے متعلق
मुशावरत हुई। अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल पर भी गौर किया गया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के मजबूत होते मोर्चे से बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद के मर्दान हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदियार वली से मुलाकात की है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिए। जी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी के एक वफद के हमरा ANP के सरबरा असफंदियार वली से मुलाकात की है, जिसमें ANP के दीगर अहम अरकान भी शामिल थे। इस मौका पर फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी और ANP दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जो 27 अक्टूबर का मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च है उसमें शरीक होगी। तो आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए क्या मोडालिटीज होंगी, क्या लाहे अमल होगा, कहाँ से शरीक हुआ जाएगा और उसमें धरने में हिस्सा लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, किस हद तक उसका साथ दिया जाएगा, ये बातें जो है दोनों पार्टी जो है वो अपनी अपनी कोर कमेटियों में तय करेगी। जबकि ये फैसला भी हुआ है कि मौलाना फजल रहमान से कहा जाएगा कि जल्द अज जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास, सरबराही इजलास बुलाया जाए। इसके अलावा कम धरने से कहा जाएगा कि अपोजिशन की जो रहबर कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए, ताकि जो 27 अक्टूबर के आज़ादी मार्च के जो मामला है उनके ऊपर मजीद बात की जा सके। ANP की और पीपल्स पार्टी के जो के रहनुमा है फरहतुल्लाह बाबर और मियां इफ्तिखार, उन्होंने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने वादे किया है कि इस पर इत्तेफाक मौजूद है। दीगर अपोजिशन जमातों का भी इत्तेफाक है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है। मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत कबूल नहीं है, ये मुसल्लत की गई है। मौजूदा हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है और इस हुकूमत को जल्द अज जल्द हटाया जाए। और ये फैसला भी हुआ है कि हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जल्द अज जल्द मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाए और ये इंतखाबात जो है ये फौज की निगरानी में ना हो, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है खुद इनकी निगरानी करे और ये मुनफाना और आजादाना इंतखाबात हो, ताकि मुल्क में हकीकी जो मोहरी जो है पार्लियामेंट वो वजूद में आ सके। क्योंकि मौजूदा हुकूमत, ये भी इनका कहना था कि जो इमरान खान है उनकी UN की जो तकरीर है वो सब एक ढोंगर ड्रामा है और उसमें इन्होंने दहशतगर्दी और तालिबान और अलकायदा से जो राब्ते तस्लीम किए हैं वो बिल्कुल गलत है, उससे सुबकी हुई है मुल्क की। उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर लिहाज से, खासतौर में माशी लिहाज से नाकाम हो चुकी है। मुल्क में बेरोजगारी इंतहा को है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, कारोबार खत्म हो चुके हैं और आवाम का जीना दोबारा शुरू हो चुका है। नवीद, कहा यह जा रहा है कि APC बुलाई जाएगी, कौन बुलाएगा APC? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको जमा करेगी? इस हवाले से नून लीग से भी कोई बात होगी? जी, पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि ANP और मुस्लिम नून और JUI की सरबराह मौलाना फजल रहमान सबसे पीपल्स पार्टी के राब्ते हो चुके हैं। दीगर से पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते भी जारी हैं और मौलाना फजल रहमान ने चूंकि आखिरी दफा APC बुलाई थी और मौलाना फजल रहमान 27 अक्टूबर के आज़ादी मार्च के ऐलान कर चुके हैं, इसलिए मौलाना से ही दरखास्त की गई है कि वो जल्द अज जल्द कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएं ताकि उसमें तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो शरीक हो। इस मौका पर फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि अपोजिशन का इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अपोजिशन अब तक मुत्तहद है, अपोजिशन मुत्तहद रहेगी और अपोजिशन को मुत्तहद रहना होगा, क्योंकि सबकी एक ही काज है और काज ये है कि मौजूदा हुकूमत को जल्द अज जल्द इसको हटाया जाए और नई हुकूमत, नई इंतखाबात कराए जाए और शफाफ इंतखाबात कराए जाए। जी अच्छा, APC के हवाले से आपने कहा कि जोर दिया जा रहा है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, तो इस हवाले से कोई तारीख पता चल सकी है कि कब तक बुलाई जाएगी APC? जी, 2 दिन में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जबकि 10 या 11 को जो है ऑलरेडी ANP जो है वो भी अपना इजलास बुलाने जा रही है अपनी CEC। तो इसमें ये मौलाना फजल रहमान से कह दिया गया है कि वो जल्द जो है बाकी जमातों से अपोजिशन की उनसे मशावरत कर ले और एक मुतफक्का तारीख जो है उसके ऊपर आइंदा 8 से 10 दिन के अंदर जो है वो APC बुला ले, ताकि 27 अक्टूबर का जो धरना है जो आज़ादी मार्च है उसको कामयाब बनाया जा सके। क्योंकि इस आज़ादी मार्च में अपोजिशन को अपना इत्तेहाद दिखाना होगा और आज़ादी मार्च को कामयाब बनाना होगा। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी और इत्तेहाद से चलेगी तो आज़ादी मार्च कामयाब होगा। नवीद, ये भी बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP शरीक हो रहे हैं मौलाना के एहतजाज में, इसका अभी दोनों जमातों की जानिब से कुछ इजहार किया गया है? जी, दोनों जमातों के रहनुमाओं ने जो इस मुलाकात में मौजूद थे उन्होंने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल वाज़ेह किया है कि हम आज़ादी मार्च में शरीक होने जा रहे हैं। दोनों ने कह दिया है कि दोनों पार्टीज जो है वो आज़ादी मार्च में शरीक होगी, मुस्लिम लीग भी शरीक होगी। तमाम उनका ये कहना है कि इसकी मोडालिटीज जो है, इसकी जो
क्या नोक पलक क्या होगी, उसको संवारा जाएगा, किस तरह से कितने दिन कहाँ से ये आज़ादी मार्च शुरू होगा, कितनी देर के लिए होना चाहिए और उसका क्या मकसद होना चाहिए, कहाँ पे ये आज़ादी मार्च लेके जाया जाए, कहाँ पे बैठा जाए और कहाँ पे जाके किस तरह से जो है और क्या इसके अंदर मुतालबात होंगे, इन चीज़ों की जो है वो हर जमात पहले अपनी CEC में फैसले करेगी, फिर वो जो तमाम फैसले वो APC में लेके जाए जाएंगे जहाँ पे तमाम मिलकर जो है फैसला करेंगे। और आज़ादी मार्च जो है यकीनन वो मुल्ला फजल रहमान की तरफ से बुलाया गया, लेकिन दीगर अपोजिशन पार्टियों को कहना है कि तमाम मिलकर एक फैसले के साथ चले और तमाम मिलकर एक दूसरे के साथ कि किस तरह से चलाना है, कोई किसी एक जमात के हाथ में क्या ना हो, जबकि क्या जो है सब मिलकर फैसले करें। जी अच्छा, जो डेवलप न्यूज है वो यही है नवीद अकबर कि अभी आज़ादी मार्च में शरीक होने जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इस आज़ादी मार्च का आगाज करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, ये अब तय होगा APC में? जी यकीनन ये APC में तय होगा, लेकिन उससे पहले पार्टीज जो है, जो बड़ी जमातें हैं, वो अपनी अपनी CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास बुलाने जा रही है, मरकजी मजलिस आमला के और कोर कमेटी होंगे, ताकि वो उसमें फैसला ले सके, अपनी अपनी जमात के फैसले ले सके, क्योंकि हर जमात को अपने जो कारकुन है उनको मुतहरक करना होगा, फाल करना होगा, कारकुनों को अब निकालना होगा। तो हर जमात फैसला करेगी कि उसने किस तरह से अपने कारकुनों को बाहर निकालना है, कैसे लेके आना है, किस तरह से जो मौलाना फजल रहमान के जो आज़ादी मार्च है उसमें शरीक होना है। तो ये जो मोडालिटीज है, जो तफसीलात है, उनको तय किया जाएगा, लेकिन ये फैसला हो गया है ANP और पीपल्स पार्टी की हद तक ये फैसला कर लिया गया है कि उन्होंने इस आज़ादी मार्च में शरीक होना है और ये बाकायदा बता दिया गया है। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च का फैसला कर चुके हैं, लेकिन तारीख का तयन उन्होंने नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का यही कहना है कि मार्च से पहले कोई धरना या इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर भी कुछ वाजे हो सका कि मार्च में ही ये तमाम एहतजाज शुरू होगा या उससे कबल भी तमाम सियासी जमातें एक हो सकती हैं इस मौक़िफ़ पर? जी मौलाना फजल रहमान 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान कर चुके हैं, उसको पहले कश्मीर के साथ यकजहती भी हो गया और वही जो है आज़ादी मार्च पार्लियामेंट हाउस तक लाया जाएगा, ये ऐलान हो चुका है और तमाम जमातें जो इसमें मुतफिक हो चुकी है। कम से कम पीपल्स पार्टी और ANP ने तो इसका इंडिया दे दिया है कि वो इस आज़ादी मार्च में शरीक हो गए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई वाज़े जो है लाहे अमल और वाज़े ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ज़राए भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी आज़ादी मार्च में 27 अक्टूबर के मार्च में शरीक होगी, लेकिन की मोडालिटीज क्या होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मोडालिटीज जो है वो तमाम जमातें अपनी अपनी तय कर रही है और मौलाना से कह दिया गया है कि जल्द से जल्द कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, सरबराह कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा अकरम दुरानी जो रहबर कमेटी के कन्वीनर है, उनका ताल्लुक भी मौलाना फजल रहमान की JUI से है, उनसे भी कहा गया है कि जल्द से जल्द रहबर कमेटी का इजलास बुलाए ताकि जो है मामला को आगे बढ़ाया जाए और तमाम मामला जो है मुशावरत के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलाए जाए। पोजीशन के तमाम मामलात इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चला जाए, मुशावरत के साथ एहतजाज की हिकमत अमली को मुरतब किया जाएगा। आज ये अहम मुलाकात थी जिसकी तफसीलात बता रहे थे नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल और असफंदयार वली की मुलाकात के बाद मीडिया से फरहतुल्लाह बाबर और मियां इफ्तिखार ने गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि हमने APC बुलाने की तजवीज़ दी है, अपोजिशन मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी, देखना होगा हम किस हद तक जा सकते हैं। मौजूदा हुकूमत धांधली ज़दा है, मईशत तबाह हो चुकी, हुकूमत को घर जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत धांधली इंतखाबात की पैदावार है और ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अवाम के मसाइल में शदीद इजाफा हुआ है, इकॉनमी तबाह हो गई है। इस हुकूमत को जाना ही जाना है। नए इंतखाबात मुनसिफाना, शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का मुतालबा, जिसमें कोई मुदाखलत, फ़ौज की मुदाखलत भी नहीं होगी। फ़ौज की मुदाखलत के बग़ैर आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात। इसलिए हमने ये भी तजवीज़ की है कि APC का इजलास बुलाया जाए। अपोजिशन इज़ यूनाइटेड, विल रिमेन यूनाइटेड एंड विल ड्राइव आउट इमरान खान फ्राम द ऑफिस। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार कहते हैं कि इमरान खान से पहले भी बहुत से कायदीन आए जिन्होंने अच्छी तकरीरें की, मगर मौजूदा हुकूमत मुल्क के लिए ख़तरा है। हुकूमत का रहनुमा मुल्क की बका के लिए ठीक नहीं। उन्होंने इस हवाले से अपोजिशन के दरमियान राब्तों में तेज़ी पर भी जोर दिया। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपोजिशन आपस में राबिते रखें, मुत्तहिद हो के आगे कदम बढ़ाएं। ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए कि 27 तारीख भी तमाम